Hello students, today we'll start the third chapter, that is acid, bases and salt. Um, Before starting the chapter, let's see what is the syllabus. So study of acid, bases and salt, in which it will be included simple definitions in terms of the molecules, which type of molecules do they contain, what are their characteristics, property, then uses of litmus and pH paper to test for acidity and alkalinity. Then example with equation for types of reactions, ionization, dissociation of ions on the basis of acid, bases and salt. Then definition of salt, types of salts with example. Then action of dilute acid on salts. The last one, that is method of preparation of normal salt, has been omitted for this year due to corona. So syllabus has been reduced. Okay, so this method of preparation of normal salt with the relevant equations is not in the syllabus for this year. So let's start with the chapter acid, bases and salt. Before starting the chapter, let's have a introduction of what is acid. This is just a brief explanation of what is acid. We'll study more about it, but just to start a chapter, we'll need to know that what is acid. So you should know that acid is something which has hydrogen as the only positive ion in it. Okay, so they have hydrogen as their constituent element in the form of proton, that is H plus. So it is the only positive ion which is given out. For example, hydrochloric acid, so HCl. So it hydrogen is present as the only positive atom here. Sulfuric acid, H2SO4. So hydrogen is present as the only positive atom here. So this way, nitric acid, that is HNO3. So it has got only hydrogen as the positive ion. So this is the example, this is the definition of acid. Now definition of base. Base is all the metallic oxides and metallic hydroxides. What do you understand by metallic oxide? That means when metal reacts with oxygen to form a new compound known as metal oxide. So any metal oxide you take, for example, if I take potassium hydroxide, okay, potassium hydroxide, so it is base. Sodium hydroxide, it is base. So this way, any metal reacting with hydroxide or oxygen. So oxygen means when it combines with Na2O, sodium oxide, right? Then CuO, copper oxide. Any metallic oxide or metallic hydroxide or ammonia solution, that is NH4OH. NH4OH, that is ammonium hydroxide, is known as ammonia solution. So these are the example of bases. And what is the definition of salt? So it is any chemical compound which is formed by the interaction of acid and base. When acid and base react together, it will form salt. So this is just a brief introduction to start the chapter. Later on, we'll study their chemical properties. You all know that what are acid and bases? Actually, they are the classification of compounds, can be classified into three distinct classes, that is acid, bases and salt. And how do you identify acid? With their sour taste, with their sour taste. And how do you understand what it is a base? By their soapy touch and bitter taste. Kadwa sa taste hota hai unka. All the acids and bases are not tasted or touched because some of them harm the body. Acids and bases, how will you come to know that whether it is acid or base? We'll come to know it by some indicators. What are indicators? They are the chemicals which indicates by means of change in color the nature of the solution. So this was just a brief introduction that what we'll be studying in this chapter. So let's see the example of some salts. Sodium chloride, NaCl, calcium carbonate, CaCO3, ammonium phosphate, NH4 and 3PO4.
This is the formula of ammonium phosphate, NH4 whole thrice PO4. So these are the some example of salts, and salts are formed by. So let's see how salt is formed according to this definition. They say that acid and base react. Let's take the example, very common example of acid and base interaction. We'll take acid as SCl and we'll react it with a base, that is sodium hydroxide. So what will be formed? A salt has to be formed. Now this is the hydrogen ion. This is sodium positive ion. This is hydroxide as negative ion. So the definition says replacing hydrogen present in an acid by metallic ion of base. Okay, so metallic ion of present in base is sodium here. So it will replace hydrogen and it will form NaCl. So this is the salt, and remaining thing will form water. ठीक है, sodium cancel हो गया, chlorine cancel हो गया. Now you can see what is left. It is H and OH. So this will form water. So this way, how salts are formed? By replacing hydrogen ion present in an acid by metallic ion, or one example that is non-metallic ion in a base. Let's see the example of non-metallic ion, that is ammonium ion also. So we'll take the example of HCl only. We'll react this with base as, okay. So this is the hydrogen ion which is to be replaced by this non-metallic positive ion from the base. So this will replace it, and what will be formed? It will be formed NH4Cl, which is the salt. Water will be formed. So this way, this shows how you can form salts. So let's start. So acid, first you should know the types of acids, and from where this word has come. It has come from the Latin word acidus, meaning sour, khatta. And the sour taste of some acids, some food, is due to the acids they contain. Now let's see some sour foods. Vinegar, है ना, सिरका जिसको बोलते हैं आप, vinegar. So vinegar contains an acid known as acetic acid. Then all the citrus fruits, oranges and lemons, contain citric acid. Rancid butter. What is rancid butter? ऐसा बटर जो खराब हो चुका है. उसमें जब बटर खराब हो जाता है उसमें बहुत एक फाउल स्मेल आती है, और उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा खट्टा सा हो जाता है. तो जो खराब बटर है, जो तो उसमें जो एसिड बन जाता है जिसकी वजह से बटर खट्टा हो जाता है, दैट इज ब्यूटायरिक एसिड. गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्टिंग ऑफ बीज एंड एंट्स, फॉर्मिक एसिड. सार मिल्क एंड कर्ड, जो खट्टा मिल्क हो जाता है और खराब होके, और कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है. देन एप्पल्स कंटेन मेलिक एसिड. Olive oil contain oleic acid, and tomatoes contains oxalic acid. Fats contain stearic acid. Grapes, tamarind and apples contain tartaric acid, and urine contains uric acid. So you should learn this, okay? You should learn the acid which is there in these food and urine, okay? Acids are defined as the compounds. Now this is the technical definition of acid which you have to learn. What are acids? So acids are compounds which contain one or more hydrogen atom and when dissolved in water to produce hydronium ions as the only positive charged ions. ये कीवर्ड है, जरूर आना चाहिए डेफिनेशन में, कि एसिड्स वो चीज़ हैं जिनके पास और कोई पॉजिटिव आयन होता ही नहीं, ना सोडियम होता है ना पोटेशियम, कोई और पॉजिटिव आयन नहीं है, सिर्फ उनके पास हाइड्रोजन ही पॉजिटिव आयन है. और जैसे आप उसको वाटर में डालेंगे तो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? वो प्रोड्यूस करना चाहिए हाइड्रोनियम आयन. ऑब्वियसली वाटर में आप जब भी डालेंगे तो क्या होगा? प्रोटॉन जो है H+ है, मैंने ये चैप्टर में करवाया है आपको पिछली बार, इफ यू रिमेंबर दैट दिस H+ विल कंबाइन विथ H2O to form hydronium ion. So this you have to learn. This is the definition of acid. They are the compounds which contain one or more hydrogen atoms when dissolved in water produce hydronium ion as the only positively charged ion. उसके अंदर और कोई भी
कैटायन नहीं होगा सिवाय हाइड्रोजन के। लेट्स सी द एग्जांपल। HCl एसिड है, उसको आपने जैसे ही वाटर में डाला तो वो उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, H प्लस आयन प्रोड्यूस कर दिया। बट दिस H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सो इट विल रिएक्ट विथ water to form hydronium ion. This hydrated ion can now exist independently in the solution. So hydrogen is common in all the acid. Very important point. Let's see the other example of acids here. Sulfuric acid, nitric acid and acetic acid. This is acetic acid. कहाँ पे होता है acetic acid? अभी हमने ऊपर पढ़ा था vinegar में. Okay? Vinegar contains acetic acid. The hydrated hydrogen ion that exists in the solution of acid is called the hydronium ion. इसका formation हम already पिछले हमने water chapter में भी पढ़ा था और अभी आप पिछले chapter में भी आपने इसको पढ़ा था. So the acidic property of an acid are actually the property of hydronium ions present in it. ये line बहुत important है, इसको learn करेंगे कि जो भी एसिडिक प्रॉपर्टी है एसिड की वो एक्चुअली में किसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो है हाइड्रोनियम आयन की जो उसमें प्रेजेंट है. और क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे आप उस एसिड को वाटर में डालते हैं क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोनियम आयन. इनफैक्ट द हाइड्रोनियम आयन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, O को पहले लिख सकते हैं, H3 को बाद. Since the positive charge due to the presence of extra hydrogen ion H plus with water which is neutral. Classification of acids. Now depending upon their sources, जहाँ से वो एसिड मिला है उसका जो भी सोर्स है उस पर डिपेंड करते हुए एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड. Organic acids. What are organic acids? Which are obtained from plants. They contain carbon atom also along with hydrogen atom. तो उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स का एक ही पहचान है कि उसमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के अलावा. तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा आपका कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो वो आपके कौन से एसिड्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स. लेट्स सी द एग्जांपल. ऑक्सैलिक एसिड, acetic acid and formic acid are the example of organic acid. कैसे होते हैं ये एसिड्स, चूंकि हमारे फूड में होते हैं, ये बी के स्टिंग में होते हैं, ये विनेगर में होते हैं ना, तो इसलिए कैसे होते हैं, दे आर वीक एसिड्स. बहुत वीक एसिड्स होते हैं ये, क्योंकि ये फूड में पाए जाते हैं. ठीक है, तो जैसे टमेटो है, टमेटो में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, तो बहुत वीक एसिड होते हैं ये. They do not ionize completely in solution, so they contain ion as well as molecule. ये लाइन समझनी बहुत जरूरी है. So what are weak acids? Weak acids are those acids which do not ionize completely in the solution. क्या मतलब हुआ ऐसा completely? एग्जाम्पल देखते हैं हम. एसिटिक एसिड का ले लेते हैं, CH3COOH. मान लीजिए इसका हमने सॉल्यूशन बनाया. We have made solution of acetic acid and this acetic acid will not completely ionize. Completely ionize मतलब सारे के सारे जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से ब्रेक नहीं करेंगे, कुछ करेंगे. ये है, ये जो आयंस फॉर्म होंगे वो आपके ये आयंस फॉर्म होंगे. लेकिन सपोज आई टेक द एग्जांपल कि मैंने बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल्स ले लिए CH3COOH के. सपोज आई हैव टेकन 50 molecules of CH3COOH. तो उसमें कुछ, just hardly 1-2 will ionize and will give you H plus and this negative CH3COO negative. बाकी सारे किस फॉर्म में रहेंगे, बाकी सारे इसी फॉर्म में रहेंगे, अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में. सिर्फ कुछ बहुत कम आयंस फॉर्म में ब्रेक करेंगे. तो इस तरीके से, इसलिए इसको वीक एसिड कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन, so they contain ions also and molecules also. Very important question. Okay, so you have to learn this, that weak acid is the acid which does not ionize completely in the aqueous solution, and that is why it has ions also and it has got molecules also. Okay, लेकिन अगर इसी जगह हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, मिनरल एसिड ले लेते हैं, तो वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड. सपोज हमने एग्जाम्पल लिया
आपका HCl का, तो क्या होगा, अगर उसको एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे और हमने 50 HCl मॉलिक्यूल लिए हैं तो 50 के 50 जो है वो इसमें ब्रेक डाउन कर जाएंगे आयंस में, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा बिकॉज दे आयनाइजेस कंप्लीटली, पूरा अच्छे से एक एक मॉलिक्यूल आयनाइज होके कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें जो कंसंट्रेशन होगा H3O आयन का, क्योंकि ये H प्लस ऐसा नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, वही अभी जो बताया था कि H2O के साथ कंबाइन कर जाएगा और कंबाइन करके क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन अगर हम हाइड्रोनियम आयन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? A strong acid has a high concentration of hydronium ions because it contains only ions. So strong acid contains only ions, weak acid contains ions as well as molecule. Let's see the example of weak acids here. Oxalic acid, acetic acid and formic acid. ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज, इनऑर्गेनिक एसिड्स, दैट इज मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स वाइज जो कॉमन एसिड्स हैं जो आपको अच्छे से पता है, दे आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ होते हैं, अर्थ में, तो एक तरह से अर्थ से मिलता है हमें, जहाँ पे मिनरल्स हैं उन मिनरल्स में से हमें इनऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं। दे डू नॉट कंटेन कार्बन, ये वो एसिड्स हैं जिसमें कार्बन नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन आप जरूर याद करेंगे एंड दैट इज कार्बोनिक एसिड। Carbonic acid is an inorganic acid which contains carbon. Carbon है इसमें, अदरवाइज जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं they do not contain carbon. एग्जाम्पल देखेंगे HCl, H2SO, फिर HNO3, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप पढ़ते हैं वो सब इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इनका दूसरा नाम है मिनरल एसिड्स। दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अभी मैंने बता दिया क्यों स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज दे आयनाइज completely, कीवर्ड है आपका completely in the solution to produce high concentration of hydronium ions. These acids contain only ions. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा, ये वाला जो बॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन का बॉक्स है, मैं आपको बताती आई हूँ एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनिक एसिड एक वीक मिनरल एसिड है जिसमें आयंस भी हैं एज वेल एज मॉलिक्यूल्स भी हैं, अदरवाइज बाकी सारे mineral acids are very strong acid. It turns blue litmus pink, it is non-corrosive and is used in soft drinks. कैसे बनता है कार्बोनिक एसिड? Water is added to carbon dioxide or carbon dioxide is added to water. This acid is formed, it is used in your soft drink, contain that to create that fizz. Some more classification we will see. The acids contain oxygen along with hydrogen and some other elements are oxy acids. तो examples याद करते जाएंगे. What are oxy acids? Which contain oxygen also, which contains hydrogen also and some other element. तो oxygen भी आ गई हमारे यहाँ पे, hydrogen भी आ गई और दूसरा element nitrogen भी आ गया यहाँ पे. तो जो नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है वो एग्जाम्पल हैं ऑक्सी एसिड्स के, बिकॉज दे कंटेन ऑक्सीजन ऑल्सो. हाइड्रोजन तो होता ही होता है एसिड में, तो हाइड्रोजन को तो चलो मान लेते हैं, वो तो प्रेजेंट एवरी टाइम इट इज प्रेजेंट. तो साथ में क्या होगा, एक ऑक्सीजन भी है और साथ में एक दूसरा एलिमेंट भी है, देन दे आर नोन एज ऑक्सी एसिड्स. हाइड्रा एसिड विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड अ नॉन मेटालिक एलिमेंट. एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है यही, साथ में एक नॉन मेटालिक एलिमेंट आ गया. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन एक पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन है, साथ में उसके एक नॉन मेटालिक आयन है दैट इज क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन. तो ये हो गए आपके हाइड्रा एसिड्स. Classification of acid based on their basicity. So you must be confused about what was this term basicity of an acid. But actually basicity of an acid is defined as the number of hydronium ion that can be produced. यानी कि वो जो acid है वो कितने ज़्यादा H plus ions दे रहा है, कितने H plus ion दे रहा है, उसका जो molecule है वो. Okay, so here you don't confuse with the basicity of an acid is the number of hydrogen atoms present in that molecule. No, it is the number of hydronium ions produced or number of H plus ions produced by one molecule of acid is known as its basicity. So depending upon the basicity, let's classify the acids coming up to HCl. So what does this acid do? इसका जो एक मॉलिक्यूल है जब ये आयनाइज करता है, अभी मैंने बताया आपको आयनाइज करके क्या बनाएगा, H प्लस और Cl माइनस.
यानी कितने हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा एक मॉलिक्यूल? 1 हाइड्रोनियम, तो इसका ये 1 हो जाएगा। दिस इज 1, तो 1 का मतलब हो गया मोनो, सो दिस इज मोनो बेसिक एसिड। एंड व्हाट इज मोनो बेसिक एसिड? एसिड विच आयनाइजेस टू गिव 1 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल। ओके, एक मॉलिक्यूल उसका 1 हाइड्रोनियम आयन देता है। आप इसको अगर एक H+ भी लिख देंगे तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो H+ है वाटर के साथ ऐड करके क्या बना देगा? ये ऐड करके बना देगा H3O+, है ना, वाटर के साथ ऐड करके। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसने कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किए एक मॉलिक्यूल ने? 1। सो दैट इज व्हाई इट इज मोनोबेसिक। So this is the example of monobasic acid. Other examples are of monobasic are HBr, देखेंगे HBr। HBr जब आयनाइज करेगा हमारा तो H+ और Br नेगेटिव बनाएगा, तो 1 बना रहा है यहाँ पे, तो मोनोबेसिक है। अगेन HNO3 में भी ये रहेगा हमारा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोनियम है। तो अभी आपको क्या लग रहा होगा कि जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वही हो गया ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इसमें? 3 + 1 4 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे इसकी क्या हो गई? इसकी तो बेसिसिटी हो गई 4, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से सिर्फ ये वाला H बाहर जाएगा, तो ये बनाएगा आपका आयन बनाएगा CH3COO एंड H+। तो कितने हाइड्रोजन इसने फर्निश किए, दिए? जितने हाइड्रोजन इसने दिए सोल्यूशन में वही उसकी बेसिसिटी है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड ऑल्दो कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स, बट इन द सॉल्यूशन, in the aqueous solution, it will give only 1 hydrogen atom, so its basicity becomes 1, and this is the example of monobasic। समझ में आ गया? यहाँ HCl आपका इजी था, HBr HNO3 इजी था, HI इजी था, क्योंकि ये इनके पास एक ही हाइड्रोजन और ये एक ही हाइड्रोनियम आयन बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आया कि इट इज नॉट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच इज forming hydronium ion. That means it is given out, H+ ion which is given out. Monobasic acids ionize in one step and so form only one normal salt. ये भी देखेंगे। अब यहाँ पे ये मोनोबेसिक एसिड है, तो इसने एक ही स्टेप में इसने आयनाइज हुआ और NaCl बना के एक नॉर्मल सॉल्ट इसने बना दिया। लेकिन अब एग्जाम्पल देखते हैं हम दूसरे का, डाइबेसिक का, देन वी विल अंडरस्टैंड। उससे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट बॉक्स है ये वाला, इसको इम्पॉर्टेंट लिख लेंगे और इसको लर्न करेंगे आप। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डिपेंड नॉट ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल बट द नंबर ऑफ आयनाइजेबल, जो आयनाइज कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम, बस वही उसकी बेसिसिटी होती है पर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल मैंने एसिटिक एसिड का दे दिया है आपको कि इसमें ऑल्दो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन ये मोनोबेसिक है क्योंकि ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन देगा बाय लिबरेटिंग ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, दैट इज 1 हाइड्रोजन, it will form only 1 hydronium ion. Coming up to the dibasic acid, acid which on ionization in water produces 2 hydronium ion. तो 2 हाइड्रोनियम आयन अगर प्रोड्यूस होंगे, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये 2 प्रोड्यूस होंगे, ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, इसीलिए इसका नाम है डाइबेसिक। देखते हैं एग्जाम्पल डाइबेसिक का। सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, तो ये याद कर लेंगे डाइबेसिक एग्जाम्पल। और सल्फ्यूरस, देखो इसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड का याद है, ऑक्सैलिक एसिड का याद है, बस आपको याद करना है, कार्बोनिक एसिड का याद है, आपको सल्फ्यूरस एसिड का याद करना है। तो सल्फ्यूरस एसिड में ये भी हमने जहाँ पे हम नेमिंग कर रहे थे वहाँ हमने सीखा था। सो दिस इज सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। Dibasic acids ionize in
2 steps. Let's see how it ionizes. पहले क्या हुआ, H2SO4 था एंड नाउ वाटर में डाला तो उसमें से पहले क्या निकला हमारा, एक H निकल गया, इसमें से एक H प्लस निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, HSO4 नेगेटिव बचा। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया हमारा H3O प्लस, क्योंकि इसमें से जो H निकला था उसने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, इस वाटर के साथ, और क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन। फिर दूसरी बार जब ये वाला इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या हो गया, फिर इसमें से फिर एक H निकल गया, H प्लस निकल गया, तो हमारा क्या बचा, तो हमारा बचा SO4 बचा हमारा नेगेटिव, और हमारा क्या बचा, और हमारा बचा H3O पॉजिटिव। तो इस तरीके से 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन हुआ आपका। ओके, पहले स्टेप में एक H प्लस निकला, दूसरे स्टेप में दूसरा H प्लस निकला। तो जो डाई बेसिक होंगे वो 2 स्टेप्स में, और जो ट्राई बेसिक होंगे वो 3 स्टेप्स में अपना रिएक्शन ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक साथ निकल गए वो तीनों हाइड्रोजन। सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो हियर वी कैन सी कि कैसे 2 स्टेप्स में H plus was formed here. This is the first step, then this is the second step. Coming up to the second example, that is carbonic acid. Again here, first one H was removed, तो H2CO3 में से H2CO3 में से अगर हमने एक H हटा दिया तो हमारा बन गया HCO3। फिर इस H3O में से ये वाला निकल जाएगा, फिर हमारा बनेगा 2-। तो इस तरीके से आयंस फॉर्म होंगे और 2 स्टेप्स में जाके ये आयनाइज होगा। So dibasic acids have 2 replaceable hydrogen ions, therefore they form one acid salt and one normal salt. तो पहला जो सॉल्ट बनेगा जब एक H निकला है तो वो एसिड सॉल्ट कहलाएगा, और जो दूसरा है वो नॉर्मल सॉल्ट। All that when there are 2 replaceable hydrogens, so first when first hydrogen is replaced, then the salt which is formed is acid salt, and when second is replaced then it is a normal salt. तो NaOH के साथ H2SO4 में पहले बनेगा NaHSO4 और बाद में यही NaHSO4 will form normal salt, that is Na2SO4। ये जो रिएक्शन है ये हम सल्फ्यूरिक एसिड वाले चैप्टर में इसको एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। Okay, now let's see the example of phosphorus acid. ये है phosphorus acid, that is H3PO3. So phosphorus acid is a dibasic acid. ये वाला भी बॉक्स important है, इसको भी important मार्क करके लर्न करेंगे। This is also important. So phosphorus acid is a dibasic acid, although you are seeing here that it is H3, that means you will think that it has got 3 hydrogen, so 3 replaceable hydrogen, तो इसका ये ट्राई बेसिक होना चाहिए, लेकिन ये डाई बेसिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से सिर्फ 2 हाइड्रोजन जो हैं वो अलग होंगे, इसमें से रिप्लेस होंगे और 2 हाइड्रोनियम आयन ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसको समझिए कैसे हमें पता लगेगा कि ऐसा होता है, क्या रूल है इसका, तो क्या थ्योरी है इसके पीछे। सो द थ्योरी इज दैट आफ्टर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द एसिड, if the hydrogen is attached to the oxygen, वही वाला जो ऑक्सीजन एटम के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है दैट विल ओनली बी रिप्लेसेबल, और बाकी कहीं भी अगर और है मतलब आपका हाइड्रोजन तो वो रिप्लेसेबल नहीं है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इसमें देखेंगे, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रिप्लेसेबल नहीं है। सिर्फ ये वाले दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है बिकॉज दे आर अटैच टू ऑक्सीजन डायरेक्टली। तो अगर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होंगे वही वाले हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो इसमें से 3 में से सिर्फ 2 रिप्लेसेबल हैं और 1 रिप्लेसेबल नहीं है, इसीलिए ये कैसा है, डाइबेसिक है। सो दिस इज डाइबेसिक। नाउ कमिंग अप टू ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक में जहाँ पे 3 हाइड्रोजन जो है वो उसके रिप्लेसेबल होंगे और 3 स्टेप में ये काम करेगा। तो एसिड्स विच ऑन आयनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 3 प्रोड्यूस करेगा, 3 हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा, तभी वो ट्राइबेसिक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे फॉस्फोरिक एसिड, ऊपर हमने देखा था H3PO3, वो था फॉस्फोरस एसिड और ये है फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें जो 3 के 3 हाइड्रोजन हैं
तीनों हाइड्रोजन जो है यहाँ पे वो आयनाइज कर जाएंगे, तो इसीलिए इसका है ट्राई बेसिक। ओके, लेट्स सी द स्टेप्स। पहला है H3PO4, तो जिसमें से एक H निकलेगा तो क्या बचेगा हमारा, H2 बचेगा हमारा, और PO4 नेगेटिव बचेगा। दूसरा H निकलेगा तो हमारा बचेगा HPO4 2 माइनस, और जब तीसरा भी निकल जाएगा तो बचेगा PO4 3 माइनस। तो ये याद कर लेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से 3 स्टेप में एक एक करके H प्लस निकलता जाएगा, और ये हाइड्रोनियम आयन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ये इस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो 2 डिफरेंट एसिड सॉल्ट्स एंड 1 नॉर्मल सॉल्ट, बिकॉज दे हैव 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो ये बनाएगा आपके 2 डिफरेंट एसिड सॉल्ट्स एंड 1 नॉर्मल सॉल्ट। तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम H3PO4 वाला। इसमें पहला एसिड, जब पहला H प्लस रिमूव हुआ तो ये वाला सॉल्ट बना NaH2PO4, दैट इज मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब इसमें से एक हाइड्रोजन और निकला तो कौन सा सॉल्ट बना, दूसरा बना, दूसरा हाइड्रोजन निकल के बना हमारा ये वाला सॉल्ट डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और जब तीनों H निकल गए तो हमारा बना ट्राइसोडियम फॉस्फेट। Okay, so this is 2 different acid salts, that is monosodium trihydrogen phosphate and disodium hydrogen phosphate। तो 2 different salts हो गए acid salts, और लास्ट में जो बना ये हमारा Na3PO4, ये आपका आ गया एक normal salt। Silicic acid, that is H4SiO4 has basicity 4। बस इसको इतना ही याद कर लेंगे, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल है। So अब now we'll see what do you mean by concentrated and dilute acid। देखो, concentrated and dilute acid is entirely different from strong acid and weak acid, so do not get confused with that concentrated or dilute is the term associated with strong or weak acid. No, strong and weak acids we've already studied, that what is a strong acid and what is a weak acid. Concentrated acid means the amount of water is approximately no, there is no amount of water, very small amount of water or no water is called concentrated acid, while acid which has more amount of water than its own mass is known as dilute acids। तो concentrated dilute का मतलब है the amount of water added, if more water then dilute, if less water or no water it is concentrated। this is also important, ये भी important है, इसको भी आप learn करेंगे। that in order to dilute an acid you have to pour acid into water। आपको एसिड को पानी में डालना है बहुत स्मॉल अमाउंट में, और उसको स्टर करते जाना है। वाटर इज नॉट एडेड टू द एसिड, एसिड लेके नीचे वेसल में फिर उसके ऊपर पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जब वाटर ऐड होता है, और उस प्रोसेस की वजह से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, और जैसे हीट प्रोड्यूस हो गया आपने थोड़ा सा पानी डाला है तो एसिड स्प्लैश करेगा और आपके फेस वगैरह पे और कंटेनर पे आ जाएगा और ब्रेक कर देगा उनको। लेकिन अगर आप पानी आपने भर के रखा हुआ है, उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में एसिड डालते जा रहे हैं, जितनी भी हीट निकल रही है इस प्रोसेस में इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर, यू आर एडिंग acid to it and continuously stirring, so whatever exothermic reaction is happening it is being absorbed by the water and it is not at all risky। Concentration of an acid simply tells us the amount of water present in the acid and not the strength of the acid। Strength of an acid is the measure of concentration of hydronium ion। ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितने कम हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं उतना वीक एसिड होता है। डाइल्यूट HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो अगर हम जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको खूब डाइल्यूट भी कर लें तब भी वो हमारे कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक एसिड से जो कि वीक होते हैं उनसे हमेशा उसकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का जो फॉर्मूला है, सिंबल है, वो है अल्फा, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड इन द aqueous solution। Let's see the formula। Degree of ionization alpha is equal to the number of acid molecules ionized
upon the total number of acid molecules present in the aqueous solution multiplied by 100। वही जो एग्जांपल मैंने दिया था, अगर आपने 50 आयंस HCl के लिए हैं तो वो 50 के 50 आयनाइज हो जाएंगे, तो ऊपर भी 50 नीचे भी 50 इंटू 100, तो 100% उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल लिया था मैंने, उसमें बताया था आपको कि आपने अगर एसिटिक एसिड लिया है तो एसिटिक एसिड अगर आपने 50 लिया है तो उसमें से एक या दो मॉलिक्यूल्स आयनाइज होंगे, तो इसमें क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2/50 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इफ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड और एल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 30%, तो वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है, और लेस है तो वो वीक है। ठीक है, तो अगर हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालनी है किसी भी एसिड की और ये पता लगाना है कि वेदर एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, तो हमें क्या पता होना चाहिए, द नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड and upon the total number of acid molecules present in the aqueous solution, and then you will multiply it by 100. Okay, now coming up to the next topic is preparation of acid. How will you prepare acid? तो सबसे पहला प्रोसेस है बाय सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई दो चीज़ मिलाई और आपकी एक चीज़ और बन गई, उसमें आपने सिंथेसाइज कर दी, आपने मैन्युफैक्चर कर दी, तो पहला प्रोसेस हो गया आपका बाय सिंथेसिस। और पहला जो एसिड बनता है वो है आपका बाइनरी एसिड। तो जो बाइनरी एसिड है जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। दो ही है, मतलब HCl का एग्जांपल ले लो, उसमें दो ही हैं, H और Cl। तो H2 मिलाया, क्लोरीन मिलाई, और क्या बन गया आपका, आपका बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2 ली, हाइड्रोजन ली और ब्रोमीन ली, और मिला के हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। फिर आपने H2S ली तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। तो ये हो गए आपके वो एसिड्स जो किस प्रोसेस से बने, जो सिंथेसिस प्रोसेस से बने, बिकॉज देर आर ओनली टू थिंग्स हियर। So we have seen the second method. It is by action of water on non-metallic or acidic oxide. Non-metallic oxides are also known as acidic oxides. So all the non-metallic oxides, non-metallic oxides कौन से हुए, जिसमें कोई भी non-metal जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, phosphorus pentaoxide. Let's see. Sulfur trioxide will dissolve in water to give sulfuric acid. Sulfur dioxide in water will give sulfurous acid. Carbon dioxide dissolves in water to give carbonic acid. यही जो आपके cold drinks में होता है. Then phosphorus pentaoxide will give you phosphoric acid. One thing that only oxy acids, so you can prepare only oxy acids by this method. Okay, oxy acids मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और एक और कोई एलिमेंट होता है, ये पढ़ा था ना मैंने, तो that is oxy acid. NO2 is called mixed or double acid anhydride because two acids, nitrous acid and nitric acid, are formed when it reacts with water. Okay, so NO2 ये भी याद कर लेंगे कि NO2 को हम mixed या double acid anhydride कहते हैं because two acids, that is nitrous and nitric acid, are formed जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये वाली इम्पॉर्टेंट है कि ये हम आपके नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन में भी इस रिएक्शन को पढ़ेंगे जब आगे नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, नेक्स्ट मेथड इज जब किसी भी नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन हम करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे नॉन मेटल है सल्फर और फॉस्फोरस। सल्फर और फॉस्फोरस जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर एक एसिड देते हैं, वाटर देते हैं और ऑक्साइड देते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड विल गिव यू sulfuric acid, water and nitrogen oxide. Phosphorus and nitric acid will give you phosphoric acid, water and nitrogen dioxide. Now the next method is by displacement method. Normal salts of more volatile acids are displaced by less or non-volatile acids. Displacement हो गया। Example, both hydrochloric acid and nitric acid are prepared by sulfur. ये रिएक्शन हमारे फिर से जब हम स्टडी ऑफ कंपाउंड से पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन सारे हमारे वहाँ पे आएंगे। तो जब भी आपने कोई सॉल्ट ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड में, जैसे NaCl, if NaCl is added to H2SO4, what will happen? Because it is dibasic acid,
So one H will be removed first. What is formed? HSO4, and then this H will combine with Cl to give you HCl here. So this H, the first H will displace सोडियम एंड विल फॉर्म HCl, और बचा आपका HSO4, और यहाँ से HSO4 बचा और उधर से बचा आपका Na, तो ये आपने इसने बना लिया NaHSO4। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी सेकेंड स्टेप में। फिर ये NaSO4 बने। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपके अभी 2020 के एग्जाम्स में भी पूछी गई है ये वाली। यहाँ पे क्या होता है, आपका 200 से अबव जैसी टेम्परेचर आप करेंगे, पहले 200 से बिलो ये बनेगा NaHSO4, और उसके बाद जैसे ही आप इसको 200 से अबव ले जाएंगे तो आपका सोडियम सल्फेट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दोनों एसिड्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, HCl एंड HNO3। ये हम इन दोनों एसिड्स की प्रिपरेशन में भी पढ़ेंगे। That both the acids can be prepared by using less volatile acid, that is H2SO4, with the salt. So more volatile acid is Cl, and HNO3 will be prepared by the action of salt on less volatile acid. What are the properties of acid? Acids have a sour taste. Mineral acids are highly corrosive in nature, therefore they should not be tasted. Corrosive का मतलब जो डैमेज कर देगा आपके टिश्यूज़ को अगर आपने टेस्ट किया उसको। हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, ओके, तो बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लेमेशंस कॉज करेगा, तो ऐसा होता है एसिड। Some acids are solids and some are liquid at room temperature. So let's see which are the solid acids. It's boric acid, oxalic acid, tartaric acid, citric acid, and phosphoric acid are in the form of solids. You have to learn their names and the formula. Then some acids are liquid. So in liquid, volatile acid that is vaporizes at room temperature or heating above 100 degrees Celsius. Those are acetic acid, formic acid, carbonic acid, hydrochloric, nitric, and sulfurous acid. Okay, these are some volatile acids. And non-volatile acid is sulfuric acid, that is H2SO4. तो ये टेबल आपको अच्छे से याद करना है with formula. Okay, so what is the effect on skin? All mineral acids, we have already discussed this earlier, that they are corrosive in nature. That means they form painful burns on the skin and they form blisters. Concentrated H2SO4 chars the skin black. जैसे आप उसको skin पे डालेंगे आपकी skin black हो जाएगी, and concentrated HNO3 makes it yellow, and concentrated HCl gives amber color to the skin. Amber मतलब yellowish orange. Carbonic acid is a mineral acids and organic acids are not corrosive. These organic acids and carbonic acid, which is a mineral acid, is not corrosive. Let's see the change in color in the indicators. What are indicators? Indicators are the complex substances that acquire distinct color in acidic and basic medium. Acid में उनका color different होता है, basic में उनका color different होता है। पहला जो indicator आप lab में use करते हैं वो है आपका litmus indicator. It is a natural coloring matter obtained from certain lichens on dissolving in distilled water. If you dissolve them in distilled water, then it will give you litmus. What is the color? It is there are three types of indicators: litmus, methyl orange, and phenolphthalein. So litmus changes blue to red in acidic medium. Methyl orange changes orange to pink in acidic medium, and phenolphthalein remains colorless. This phenolphthalein was asked in 2020. What happens to the phenolphthalein with HCl gas? So, because HCl is acidic, it remains colorless. The red cabbage extract, it is a natural indicator which remains red in acidic solution but turns green in basic solution. ये याद करने हैं आपको सारे colors. Those substances whose smell or odor changes in acidic or basic solutions are olfactory indicators. For example, onion. तो अगर आपके पास घर में कुछ भी इंडिकेटर नहीं है, आपके पास अनियन है, वनीला है, क्लोव ऑयल है, क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल है आपके पास, so you can detect whether the thing is acidic or basic. Onion has a
characteristic smell. An acidic solution does not destroy the smell of the onion. याद रखेंगे. और उल्टा है इसका, बेस में इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. इसीलिए when you know clothes are washed in basic things, जो हमारा कपड़े धोने की चीज़ें हैं वो सब बेसिक हैं. तो इसीलिए जब आप कपड़े पहन के आप योर मदर कुक्स फूड, तो जब वो कपड़ों में जो अनियन की स्मेल होती है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस स्टेट. जैसे आप पानी में डालेंगे आयन फॉर्मेशन होगा एंड द flow of ions. Because of these ions, they act as a. Now we'll see the reaction with active metals. So when acid reacts with active metal, always remember hydrogen gases evolved. Active metals with acid will give you salt and hydrogen gas. तो आपको ये वाला पहले याद करना है कि क्या होता है. एक्टिव मेटल प्लस एसिड प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. चाहे कोई सा भी एसिड हो, both dilute HCl and dilute H2SO4 react explosively with active metals like potassium, sodium, calcium, and less active metals like magnesium, zinc, etc., reducing metallic salts and hydrogen. बहुत ईजी है इसको याद करना. Mg के साथ HCl का Cl लगा दीजिए और हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए. Zn के साथ Cl लगा दीजिए और Fe के साथ SO4 लगा दीजिए और हाइड्रोजन गैस इसमें से evolve कर दीजिए. So it's easy to learn all the reactions here, that active metals react with acids to give you their respective salts and hydrogen. Nitric acid is a very strong oxidizing agent, so it is not used in the preparation of hydrogen. Very important line. Direct reasoning का question आता है, why this nitric acid is not used in the preparation of hydrogen. तो reasoning का question है, बस इसमें याद कर लेना. यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो इसमें एक्सेप्शन है आपका. सो HNO3 जो है वो आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है कि HNO3 will not produce hydrogen in the presence of active metal. So why it does not do that? Because nitric acid is very strong oxidizing agent. बहुत ज़्यादा strong एक oxidizing agent है. तो वो क्या करेगा? अगर बहुत ज़्यादा strong oxidizing agent है तो it will जो भी हाइड्रोजन निकलेगी उसको ऑक्सीडाइज करेगा and water will be formed. So it will oxidize that hydrogen and water will be formed. तो जब भी नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल के साथ तो वाटर फॉर्म होता है, हाइड्रोजन फॉर्म नहीं. एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं और वो है ये वाली. जब आप मैग्नीशियम या मैंगनीज को लेंगे मेटल्स की जगह और बहुत ही डाइल्यूट कंडीशन में आप HNO3 लेंगे, 1% तक आप उसको डाइल्यूट करेंगे नाइट्रिक एसिड को, तब हाइड्रोजन गैस फॉर्म. ये हम दोबारा पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड में. रिएक्शन विद बेस, अब आ जाते हैं रिएक्शंस विद बेस. जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है? तो जो रिएक्शन होता है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. सो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर. बेसिस क्या है? बेसिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, वो बेस है. ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स एंड hydroxide are bases. हमने बेस की डेफिनेशन में पढ़ा था. When they will react with acids, they will give you salt and water. Again it is easy. जो इसका नेगेटिव आयन है वो इसके पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो CuSO4 बन जाएगा. बचा क्या? H2O बचा. फिर इसका भी NO3 जो है नेगेटिव आयन वो उसके साथ चला जाएगा तो फॉर्मेशन हो जाएगी NaNO3 की. और बचा क्या? वाटर. सो इजी टू लर्न रिएक्शंस है. Action of dilute acids on salt. What will happen if I add dilute acids on salt? The decomposition of hydrogen carbonates and carbonates. सबसे पहले अगर हम dilute acid डालेंगे कार्बोनेट्स पे और हाइड्रोजन कार्बोनेट पे तो क्या होगा? तो याद रखना, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विल गिव यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो अब इसमें कैसे याद करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर तो बन ही रहा था. यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट. तो कार्बोनेट्स लिए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी. तो देखेंगे CaCO3 HCl, तो इसका Ca चला जाएगा HCl के साथ और वाटर निकल जाएगा H और इसमें से O निकल गया. तो बचा क्या? CO2. तो CO2 यहाँ पे. तो इस तरीके से इजी टू लर्न रिएक्शंस हैं ये भी. फिर हाइड्रोजन का बाइकार्बोनेट इसमें
कैल्शियम बाइकार्बोनेट में भी यही होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCl निकल गया, वाटर निकल गया, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। If the salt produces insoluble, then the reaction does not proceed. So we do not expect lead carbonate to react with hydrochloric acid or sulfuric acid. Nor does calcium carbonate react with sulfuric acid. ये बहुत important कि अगर insoluble salt बन जाता है इस केस में कभी भी, तो क्या होगा, आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा, क्योंकि जो सॉल्ट है वो आगे उसको प्रोड्यूस ही नहीं करने देगा, आप रिएक्शन को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो फिर इसीलिए जो लेड कार्बोनेट है ये वो रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड। एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। तो फिर देखिए सल्फाइड्स है, बाइसल्फाइड है, कौन सी गैस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ये याद रखेंगे, जब भी सल्फाइड या बाइसल्फाइड, सल्फाइड और बाइसल्फाइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट वाटर तो बनेगा ही बनेगा, साथ में बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखेंगे CaSO3, दिस इज कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। उसी तरीके से सोडियम बाइसल्फाइड reacts with HCl to give NaCl, water and सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड। फिर आ जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड्स। तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल सल्फाइड। हम एग्जांपल ले रहे हैं मेटल सल्फाइड का, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आएगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि मेटल सल्फाइड अगर होगा तो एसिड के साथ तो सॉल्ट बनेगा, और देखिए यहाँ पे वाटर नहीं बनेगा, देयर विल बी नो वाटर हियर, no H2O. Remember, on decomposition of sulfides, no water will be formed. Salt will be formed and hydrogen sulfide will be formed. सारे reactions बहुत important हैं. Reactions with chlorides and nitrates. Few chlorides and nitrates react with dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid, such as barium, lead. तो बेरियम क्लोराइड जो है वो H2SO4 के साथ करके बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देगा और HCl विल बी फॉर्म्ड। लेड नाइट्रेट लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट देगा। ये सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं यहाँ पे। और लेड नाइट्रेट अगर HCl के साथ करेगा तो PbCl2 दैट इज लेड क्लोराइड और का वो देगा। BaCl2 है तो HCl की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे NO3 है तो नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन। Otherwise, chlorides and nitrates react only with concentrated H2SO4 on warming to liberate HCl and HNO3 respectively. तो सिर्फ ऊपर वाले क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट के साथ, अदरवाइज जितने बाकी जो क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट करते हैं और इस तरीके से ये रिएक्शंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सब। आप जब आप स्टडी ऑफ कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो आपको ये दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। जनरल यूज ऑफ सम एसिड्स आपको पता होना चाहिए क्या है जनरल यूज। बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, देन कार्बोनिक एसिड, टार्टरिक एसिड इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। एस्टिक एसिड इज टेबल विनेगर, कुकिंग में यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, क्लीनिंग ऑफ मेटल आइटम्स। ये जो पिकलिंग वर्ड है यहाँ पे मेटल की क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। व्हेन यू क्लीन द मेटल सरफेस बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड्स टू रिमूव स्टेन्स एंड एवरीथिंग, देन या रस्ट रिमूव करना है आपको उसमें से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पिकलिंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड एज अ पिकलिंग एजेंट इन मेटल इंडस्ट्री। बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है, परफ्यूम्स में, मेडिसिन में, नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव्स में, एंड फॉस्फोरिक एसिड्स फर्टिलाइजर। So this way we finished acid today. Next turn we'll take bases. Thank you.